evening and good morning to all. Good evening to India and good morning to Dr. Melvin Bodity and Mrs. Susan Chan and all those who are out of India. To in this whisper meeting, I want to welcome everyone. I can see Gladwin Tudu, Dr. Melvin Bodity, Janil Tudu, Susan Chan, Joel A. Daniel, Alice Kisco, and Alia. To begin this whisper meeting, shall we bow down our heads and start with this whisper meeting with prayer? Let's pray. Our most loving Heavenly Father, Lord, thank you for this moment. Help us as whatever is there message and special songs and quiz. Help us so that we may conduct it nicely and all be with all those who are leading this and help me as I'm MC for this meeting. Help me to conduct it nicely. Bless each and everyone with the message who is going to take. This short prayer asking in Jesus' name. Amen. I can see Bubbly Kisku. She has entered, and there are many more persons to join in this meeting. Our song service will be taken by Dr. King Kisku and his family. Good evening, everyone. Happy Sabbath. And it is such a joy to get together to worship again at the beginning of Sabbath. Such a joy to see everybody. Mamu, Mami, Georgie, Gilu, and Dr. Melvin family, and many others who are probably not fitting in my screen. Yeah, we have been facing with a lot of requests, prayer requests for people who are falling sick. And, these are difficult times. Again, we are having all our hospital beds are full, and there is long lines outside the hospital, ambulances. And it's such a distressing thing to watch people falling sick. At this time, as we have worship today, let's sing some songs uh, about Jesus, who is our master healer, the great physician who can heal us not only from COVID but also can heal us from our sinful ways, our guilt and shame, and all the accusations which Satan puts on us. So we decided that we have selected songs that sing about Jesus and His love and His healing power to heal us from all problems, not only from sickness but also from within. Okay, so can we have the first song, please? Okay, so the first song is entitled "O Shepherd Divine." Okay, Shepherd Divine of Jesus, and in this dark world below, we can lean on our Shepherd Divine, Jesus, to lead us in this difficult time. So let's sing the first song, "O Shepherd Divine," from our church hymnal, song number 192. O Shepherd Divine, I know thou art mine. Thy search in the light was for me.
next song that we want to sing is a very nice song called I Want Jesus to Walk With Me, song number 624 from a hymnal. This song is a very little a sad song. It's a Negro spiritual song, okay, sung on a minor key, which hits a very sad note, but it really touches your heart. It's a prayer. It's a earnest request that we ask Jesus to walk with me. Let's sing this song. I want Jesus to walk with me. I want Jesus to walk with me. All along my pilgrim journey, I want Jesus to walk with me. In my trials, Lord, walk with me. In my trials, Lord, walk with me. When the shades of life are falling, I want Jesus to walk with me. In my sorrows, Lord, walk with me. In my sorrows, Lord, walk with me. When my heart is aching, I want Jesus to walk with me. Okay, as we are singing songs about Jesus, okay, who loves us, who does not want to see us sad, who does not want to see us bearing, okay, all the difficulties and troubles of this world. The only problem is sometimes we don't want to give up our problems. We just want to carry it by ourselves. And Jesus says, my yoke is easy and my burden is light. But we all like to carry our own burdens and yoke sometimes. And that is why we are grieved. And he is even much more grieved when we do that. This song, Does Jesus Care? When my heart is pain. It says, yes, he cares. His heart is touched with my grief. Let's sing this song to reassure ourselves that Jesus is even more burdened when we don't want to hand over our yoke and our burdens to him. Does Jesus care? Does Jesus care when my heart is pain too deeply for myrrh and song? As the burdens press and the
learn about Jesus, the more we read about Jesus, the more he fills my heart, the more we elevate him in our lives, okay, the more he is glorified. Jesus says, if I am uplifted, I will draw all men closer to thee. So as we sing this song more about Jesus, let's just elevate our Lord and Savior Jesus, that all men will be drawn to him and people will be relieved of this sickness, of this sin problem, of this COVID problem. More about Jesus I would know. More about Jesus I would know. More of his grace to others show. More of his saving fullness sing. More of his love who died for me. More about Jesus. More about Jesus. More of his saving fullness see. More of his love who died for me. More about Jesus, let me learn. More of his holy will discern. Spirit of God, my teacher be, showing the things of love to me. More about Jesus. More about Jesus. More of his saving fullness sing. More of his love who died for me. More about Jesus in his word, holding communion with the Lord, hearing his voice in every line, making each faithful stay by. More about Jesus. More about Jesus. More of his saving fullness sing. More of his love who died for me. More about Jesus on his throne, riches and glory all his own. More of his kingdom sure and peace. More of his coming Prince of Peace. More about Jesus. More about Jesus. More of his saving fullness sing. More of his love who died for me. Okay, the last song that we have chosen for our song service, and this can probably be our opening song also, is Turn Your Eyes Upon Jesus. Okay, such a beautiful song. The words say, when we look into his wonderful face and the things of the earth grow strangely dim in the light of his glory and grace. When we turn our eyes upon Jesus, okay, we experience a peace, the peace that the world cannot give. The things of this earth
just grow dim and we experience a different level of peace that comes only from Jesus. And in spite of all the disturbances around us, only Jesus can give us that peace. So let's sing the song as our opening song, Turn Your Eyes Upon Jesus. O soul, are you weary and troubled? No light in the desert you see. O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for the look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. For us sin no more had dominion, for more than our curse we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the awe of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Thank you for allowing us to lead in the song service this evening, and back to you. Thank you so much. I want to thank Dr. King for this lively and meaningful and consoling song service. And now I would like to read a memory verse from Jeremiah 30, verse 17, and it says like this: I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Amen. I would like request David Jijaji to lead us in prayer. All right, so let's all bow our heads and close our eyes wherever we are, knowing that our God is with us, He's blessing us. Let's do that. Our great God, Almighty Father, we thank Thee for this wonderful Sabbath day granted to all of us, Lord. It's Your blessing. And we know, Lord, that Thou art blessing each and every family represented here, and that Thou art taking care of the sick and the sick and the suffering and the poor and the needy, all of them, Lord. They are under Your watch and care. Thou art merciful and gracious unto all. Lord, we have nothing to fear but
but to put our trust in thee in every situation. Lord, we pray, Father, that all things will go well as has been planned for our worship evening experience now. Bless the one who will bring us the message, and bless our little children, boys and girls, all of them, Lord. They are very dear to us and to thee. Thank you for hearing and listening to our prayer. In Jesus' name, amen. I want to thank Mr. David John for opening prayer. Now I want to hand over Miss Alia Hasdak to lead us in our Bible quiz. I hope everyone is prepared for Bible quiz. Now this time is for Alia Hasdak to lead us in our quiz. Okay, thank you. So, happy Sabbath to everyone. So, I'll start by sharing the screen. So, there are 10 questions, and in the end, I have true and false questions. So, I'll start. Okay, so I'll start with the quiz. So, the first question is, from which tribe was David? And yes, the right answer is Judah. Okay, so let's see who is on lead. Okay, so Indore is on lead, followed by NT, Cells, and Kenny. So move on to the next question. Joshua of the tribe of Ephraim also had another name. What was it? Okay, so yeah, the right answer is Joshua. So let's see who's on lead now. Okay, Indore is still on lead, followed by PG, RSS, Dells, and NT. The next question. What were they to find out about the mall? Okay, the right answer is all of the words, all options. Okay, so invoice still on lead, followed by brief cells, GRSs, and empty. And GRSs are speak of brief. Okay, how long did they explain? Yes, so the right answer is 40 days. I think all most of the got correct. And indoor still on lead, followed by peep cells, TRSs, and N. Next question. Why were the rest of the men afraid to attack Daniel?
Yes, the right answer is all transition, and I think almost all of them are correct. Okay, indoor still on lead, followed by Preet, Stealth, Jamie, and Entry. Got punished prisoners for 40 years, 1 year for data. Okay, the right answer is the species Floridan spinal plant, and half of you got it right, I guess, almost. Okay, now Preet on lead, followed by Indore empty, Delano, and Stills. What did God say should happen to a man who was caught walking on the Sabbath? Okay, almost all of you have got this. Now, Preet is on lead and have streak of 7 correct answers in a row, and Indore, followed by Indore, the Rano Styles, and G. What did the combination of the two dots and find? Okay, that was fast. Almost all of you got it right. Okay, Preet is in lead, followed by Indore, the Rano Styles, and G. Okay, this is the second last question. How long did they wander in the wild monkeys? We almost we got this one right too. Year for each. The 40 days is 5 around. Okay. Peter still on leave, followed by Indore, Diana Stills, and Gina. It has almost got everything right. This is the last question. God said everyone older than 20 would not enter promised land without again. Yes, it was Joshua and Caleb, not Aaron's. Hmm. Okay. Okay, so Indor's lead and followed by Delano. Read and congratulations to the runner-ups. So thank you for joining quiz. I'll stop sharing. I want to thank Alia Halda for nicely conducted us in quiz, and it was very beautiful. You have very beautifully done it, and we want to thank for this. Now we have special song from Miss Bubbly Kisco, and I want to
hand over this time to Miss Bubbly Kisku. Happy Sabbath, everybody, and a good evening to you all. I would like to thank God for giving me this opportunity so that I can sing praises unto Him. The song that I'm going to sing this today evening is Wonderful, Merciful Savior. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb would rescue the souls of men? Oh, you'd rescue the souls of men. Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope in our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give us healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness we find us falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope in our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give us healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give us healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. I want to thank Madam Babli Kisku for a nice song, and
God bless you more and more so that we can hear more special song from you. You get more blessings. Thank you. We have memory verses from 2 King 20 verse 5, and it says like this: I have heard your prayers and seen your tears. I will heal you. Amen. Now this time is for a message, and this message will taken by Pastor Victor Lakra, and this time is yours. Right. So while we are waiting for Victor Bhai, we'll have a special prayer. Okay, Pupa, सनातन पुपा, आप ही एक तो स्पेशल प्रेयर कर दीजिए, स्पेशल प्रेयर कर दीजिए। कोई बीमार है अभी? अच्छी बात। हम लोग प्रार्थना करें, सब कोई सिर झुकाएं, आंख बंद करें और अपने मनों को परमेश्वर के पास ले जाएं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं हर आशीषों के लिए। तू हमारा देखभाल करता है, रक्षा रखवाली करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू इस दुनिया में हमें मौका दिया है कि हम अपना जीवन बिताएं और इस जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और हमारा दुनिया में बहुत प्रकार का दुख और तकलीफ से भरा हुआ है और बहुत कोई बीमार पे पड़ जाते हैं, यहाँ तक भी मृत्यु भी हो जाती है। हम इसलिए प्रार्थना करते हैं विशेष करके उन लोगों के लिए जो अभी दुखित में है, पीड़ित में है, बुखार में है, पॉजिटिव में है और हॉस्पिटल में है और घरों में लॉकडाउन में है। इस प्रकार से प्रभु हर एकों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अभी याद करते हैं जिनका रिक्वेस्ट किया गया है, जिसको हम जानते हैं, हम विशेष करके IVR क्लाउडियस लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनको बिल्कुल चंगा कर और जो कुछ भी है उनको दुख तकलीफ है उसको सहने की शक्ति दे और तेरे आशीर्वाद उनके ऊपर। और इसी के प्रकार से और भी हैं जो कि बीमार पड़े हुए हैं प्रभु, और उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। और बहुतों का नाम है शारदा के परिवार के, उसके माता जी के गुजर गए हैं, उसके घर में बहुत दुखित में है प्रभु, उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। बलराम है, बाबू है और सावित्री है, बहुत है उनके परिवार के लोग दुखित में है। आज उनका डेथ हो गया है, एम्स में थे और उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनको भी सांत्वना दे, दुखित में है प्रभु। और इसे बाबू बा का भी हम लोग याद करते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ में है और पॉजिटिव में है। वहाँ पर कारमाटर में बहुत कोई है जो कि उनको तकलीफ में है प्रभु, पॉजिटिव में, उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनका देखभाल कर, रक्षा रखवाली कर, चंगा कर। और मोना भी है प्रभु, मोना को याद करते हैं, वो भी सलाइन चढ़ाई हुई है, तकलीफ में है, कमजोर में है, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं ताकि जल्द से जल्द ऐसे लोग चंगे हो जाए, तेरे आशीष के कारण बन सके प्रभु। तेरे हाथ में सौंपते हैं। और लोग भी हैं जो जिनका नाम नहीं जानते हैं, तकलीफ में है, लेकिन जब ऐसे समय आ गया महामारी में जो कि लोग पॉजिटिव में है और अपने दिन गिन रहे हैं प्रभु, या तकलीफ में है, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। वो लोग चंगे हो जाएं और तेरे राज के लिए तैयार होने के लायक बन सके प्रभु। हर एकों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस प्रोग्राम में जितना कोई उपस्थित हैं, हर एक कोई का प्रार्थना उनके लिए जिनको हम नाम भी नहीं लिए हैं और तकलीफ में है प्रभु, सब के सब को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनको चंगा कर और तेरे हाथ में उनको सौंपते हैं। जो दुखित में है वो लोग सांत्वना देते हुए तेरे राज के लिए तैयार हो सके प्रभु। इस जो छोटी झूठ के सभा में हम लोग सब शामिल हुए हैं, हर एकों के साथ पूरा, और जो कोई प्रोग्राम करते हैं, गीत गाते हैं, वचन सुनाते हैं प्रभु, उनके साथ साथ तेरे हाथ में सौंपते हैं ताकि इस प्रोग्राम तेरी इच्छा के साथ पूरा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगा जाए तो सुन और ग्रहण। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सावत के शुरुआत में हम सब हो सकते हैं और इस मौका के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ GPD हिमरोम के इस प्रोग्राम के लिए। और तो आइए हम थोड़ी समय हम एक दो चीज हम वचनों में से हम देखेंगे जो हम सब
जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें बताना चाहूंगा। मैं जिस तरह से मैं छोटी सी चित्र तैयार किया हूँ, शायद ये 5 से 10 मिनट का हो सकता है। तो जैसे हम पाते हैं मत्ती 7 का 1 से 4 में, हम क्या करते हैं, बहुधा हम छोटी छोटी चीजों के लिए हम एक दूसरे के प्रति हम क्या करते हैं, हमेशा अंगली दिखाते हैं ना, हम दोष लगाते हैं। हाँ, हमेशा हम दोष लगाते हैं। और हम हमारी दोष लगाना हमारा सर से लेकर पैर तक क्या है, हर समय प्यार रहता है कि हम किसको किस समय दोष लगाए। और जिस तरह से शैतान जो है हमेशा हमें क्या है, अपने पकड़ में रखना चाहता है, और पकड़ में रखना इसलिए चाहता है कि हमारे द्वारा से शैतान क्या करे, गलत गलत कामों को कर सके। और इसी तरह से हम शैतान के फंदे में क्या हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। और हम इसी तरह से हम शैतान के फंदे में पड़ने के बाद जो है, हम ईश्वर से हम दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, हम दोष ढूंढते हैं, और एक दूसरे को हम दोष लगाने में हम हमेशा क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो जिस तरह से मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा इसको, जैसे मत्ती 7 का 1 से 4। आप लोग के पास बाइबल है तो आप लोग खोल सकते हैं। और जिस तरह से कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी क्या लगाए, दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी क्या लगाया जाएगा, दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए ही भी नापा जाएगा। जिस तरह से हम बोलते हैं, जैसा करनी वैसे हमें भरनी होता है। और इंग्लिश में कहता है टिट फॉर टेट, जैसे हम करते हैं उसी तरह से हमारे साथ भी किया जाता है। इसीलिए हमें यहाँ वचन में आगाह करता है कि जिस नाप से हम नापते हैं, हम दोष लगाते हैं, उसी नाप से हमारे लिए भी क्या है, उसी माप से हमारे लिए भी दोष लगाया जाए। इसलिए बाइबल हमें क्या करता है, सावधान करता है। लेकिन हम सावधान नहीं बरतते हैं, और हम शैतान के बहकाव में, शैतान के लोरी में हम चले आते हैं, और हम उस जैसे हमें सुलाता है वैसे हम क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। हमें कहता है, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब वचन हम सुनते हैं, शैतान हमें अपने लोरी में लेके हमें सुला देता है, और हम सो जाते हैं बिंदास। और हम वो ईश्वर का क्या इच्छा है, ईश्वर का क्या उपाय है, उसको हम नहीं देखते हैं, और ना हम सोच नहीं सकते, क्योंकि शैतान हमें अपने गोद में लेकर क्या किया है, सुला दिया है, और हम सो जाते हैं। और इसी तरह से हम हर समय जो हमारा सोच क्या है, एक दूसरे के प्रति हम फिंगर दिखाने के लिए, एक दूसरे को हम दोषी लगाने के लिए, छोटे छोटे चीजों में हम दोष लगा देते हैं। हाँ, जैसे हम घर परिवार में भी है तो हम क्या करते हैं, दोष लगा देते हैं, क्षण क्षण भर में। हो सकता है हम खाने पीने के बारे में दोष लगा देते हैं, हम हो सकते हैं अभी हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हाँ, अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उसमें भी हम दोष लगा देते हैं। अच्छी बात है, जब हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम दूसरा तरफ हमारा ध्यान है, तो बोलना अच्छी बात है। लेकिन हम दूसरे चीजों में हम हमेशा दोष लगाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम दोष ना लगाएं। इसी तरह से हमें वचन आगाह करता है कि लूका का किताब अगर हम लोग देखते हैं, उसका 6 अध्याय, लूका 6 का 37-38, अगर आपके पास बाइबल है, लूका 6 का 37-38 सब लोग देख सकते हैं। यहाँ कहता है 37-38 में, यहाँ भी कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, और दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहरोगे। यहाँ बहुत अच्छा हमें बात करता है, अगर हम दोष लगाते हैं तो हम पर भी क्या लगाया जाएगा, दोषी लगाया जाएगा। अगर हम जिस किसी को हम दोषी ठहराते हैं तो हमें भी निश्चित है कि हमें तो दोषी ठहराएगा। और हम और संसार में ऐसे कोई लोग नहीं है जो हम परिपक्व है, जैसे कहेंगे कि हम
परमेश्वर में हम क्या है, परिपक्व है एकदम। हमारे प्रति किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है, किसी प्रकार का दोष मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन दोष हमारे जीवन में क्या है, कूट कूट के, जिसको बोलता है ना, जैसे हम दिस्ता में हम कोई चीज कूटते हैं तो क्या हो जाता है, कूटने से वो एकदम गुंडा हो जाता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी क्या है, कूट कूट के एक गुण जो है भरा हुआ है कि हम हमेशा, हर क्षण, हर समय हम तैयार रहते हैं हम किसी को हम दोष लगाने के लिए। इसी तरह से हमें यहाँ आगे भी कहता है, यदि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग तुम्हें नाप नाप पूरे नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभारता हुआ अपनी गोद में डालेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सुंदर वचन है, जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। इसी तरह से हम आगे देखेंगे मत्ती की किताब उसका 7 का 16 और 16 से 20। मत्ती 7 का 16 से 20। यहाँ पर कहता है, पेड़, हमें पेड़ के साथ तुलना किया जाता है। पेड़, हम जैसे पेड़ लगाएंगे वैसे हम फल पाएंगे। अगर हम, अभी सीजन है आम का, कटहल का, अगर हम कटहल का पेड़ लगाए और हम आम खाने खोजेंगे तो हमें आम नहीं मिलेगा। अगर हम आम लगाए हैं तो हमें आम ही खाने मिलेगा। अगर हम कटहल लगाए हैं तो हमें कटहल ही खाने मिलेगा। इस तरह से हमें आगाह कराता है यहाँ कि कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों को भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में तुम्हें फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान है। हाँ, वो कहता है कि हमें फाड़ खाने के समान वो भेड़िया के समान है। और वो सच में हमें जो है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम झूठे भविष्यवक्ता के साथ चलते हैं तो हमें गलत शिक्षा दे देते हैं, हाँ, गलत उदाहरण दे देते हैं, गलत रास्ता हमें बता देते हैं और उस रास्ता में हम चलते हैं। जिस तरह से मैं बीते साबत सरमन ले रहे थे, उस समय संबोधित कर रहा था कि हो सकता है मुझ में वो गुण नहीं है जो दूसरे पादरी में, दूसरे अगुओं में वो गुण है जो हमारे एडवेंटिस्ट कलीसिया के नहीं है। और उनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के सिद्धांतों से क्या हो जाते हैं, दूर रहते हैं, उन्हें गलत शिक्षा देते हैं और हम गलत चीज को हम सोचते हैं, गलत चीज को हम करते हैं। जिस तरह से हम गलत क्या है, पेड़ लगाते हैं और गलत हम फल हम पाना चाहते हैं। इसलिए हमें कहता है सावधान रहना है कि उन फाड़ खाने वाले भेड़ियों के साथ हमें सावधान रहना है। क्या लोग, अगर यहाँ हम देखते हैं, यदि लोग झड़बेड़ियों से अंगूर और उटकटारे से अंजीर तोड़ते हैं, यहाँ हमें साफ साफ कहता है जो चीज हम लगाएंगे वही फल हम पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए बहुधा, जब हमारे परिवार है, हमारे बल बच्चे हैं, उन्हें भी हमें अच्छी चीजों को सिखाना है, हमें उन्हें सावधान बरतना सिखाना है। अगर हम उन्हें सावधान रखते हैं और वो सावधान रहते हैं तो हम उन्हें अच्छी चीजों को पाने के लिए एक अच्छा उम्मीद कहना चाहिए, हम उन्हें सिखा सकते हैं और उन्हें हम अच्छा रास्ता बता सकते हैं। अगर हम नहीं, तो इसी तरह से हम अगर कटहल का पेड़ रोपेंगे और हम आम चाहेंगे तो हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए परमेश्वर हमें आगाह करता है कि सावधान रहिए। इसलिए हमें हर चीज में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी तरह से हम देखेंगे मत्ती की किताब उसका 12 का 33, यहाँ भी इसी प्रकार की है, 12 का 33। बारह का 33 यहाँ कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी क्या करना, हमें अच्छा करना। यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से क्या है, पहचाना जाता है। हाँ, तो हमें यहाँ देखते हैं कि अगर हम पेड़ को अच्छा कहेंगे तो उसका फल को भी हम अच्छा कहेंगे और उनके पेड़ के द्वारा से उनके फल के हम पहचान कर सकते हैं। और इसी तरह से जब हम, अगर उस पेड़ में निकम्मा फल है
जिस तरह से हम उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी है, हम गलत शिक्षा दी हैं, गलत शिक्षा की ओर बढ़े हैं और गलत शिक्षा से ही उन्हें हम बढ़ाए हैं, तो हम उस पेड़ को क्या कहेंगे? निकम्मा कहेंगे। लेकिन जब हमें परमेश्वर ने कहा है कि नीचे हम पाते हैं, हे सांप के बच्चे, तुम बुरे होकर भी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से मुंह पर आता है। हम भले बात कह सकते हैं, लेकिन हमारे मुंह में, हमारे मन में वही क्या है? बुरा बात जो है हमारे मन में भरा हुआ है। इसी तरह से हमें आगाह कराता है कि हम 35 में पाते हैं कि भला भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है। कि हमारे मन में जो बुरी बात है वही हम निकालते हैं, और जो हमारे मन में अगर अच्छी बात है तो हमारे मन से अच्छी बातें, अच्छे गुण, अच्छे चीज हमारे मन से निकलता है। इसलिए कहता, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मे बातें मनुष्य कहे, न्याय के दिन में हर एक उस बात पर लेखा देगा। अब परमेश्वर, अगर हम बुरी चीज को सोचते हैं, बुरी चीज करते हैं, तो परमेश्वर उसका हमारा लेखा जोखा लेगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपने ही बातों के कारण क्या होगे? दोषी ठहराया जाएगा। तो हम अपने ही कर्मों के द्वारा से, अपने ही चाल चलन के द्वारा से हम दोषी ठहर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आगाह करता है। परमेश्वर हमें आगाह करता है कि हम इन चीजों से हम बचे रहें, इन चीजों से हम बचे रहें। इसी तरह से हम पाएंगे लूका का किताब, उसका 6 का 33, लूका 6 का 43-45, लूक 6:43-45। यहाँ कहता है, जो कोई पेड़ कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और जो और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि जो लोग झाड़ियों में अंजीर और तोड़ते हैं और झड़बेड़ी में अंगूर भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है, और बुरा मनुष्य अपने मन की बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह में आता है। सही बात है कि हमारे मन में क्या है? शैतान जो इस प्रकार का जहर भर दिया है कि हमारे मुंह में, हमारे मन में हर समय, हर क्षण क्या है? बुरी बात, बुरे विचार, बुरे सोच रहता है, और हमारा मन से वही निकलता है। इसलिए हमें परमेश्वर आगाह करता है कि हम एक भाले अच्छा भंडारी बने, क्योंकि हमारे अगर भंडार में हम गलत गलत चीजों को रखें, गलत सामान का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा भंडार गंदगी वाला भंडार रहेगा। इसी तरह से हमारा भंडार क्या है? अच्छा भंडार होना चाहिए, भला भंडार, जिसमें हम, हमारे लिए जो परमेश्वर ने अच्छे अच्छे गुण दिए हैं, अच्छे अच्छे विचार दिए हैं, अच्छे अच्छे सोच दिए हैं, उन भंडार के द्वारा से हम हमारे मन से अच्छे विचार हम प्रकट करें, ताकि अच्छे विचारों के साथ हम अच्छे चीजों को हम करने की हम कोशिश करें। इसी तरह से अगर हम नहीं करते हैं तो हमें पहला पत्रस उसका 5 का 8 में हम पढ़ेंगे, यहाँ पाता है कि शैतान उस तत्पर रहता है, जिस समय शैतान क्या करता है? हमेशा ये कोशिश करता है कि हमें अपनी ओर आकर्षित करें, और हम इस में हम लोग चूक जाते हैं, और चूक के हम शैतान के तले, हम शैतान की ओर हम बह जाते हैं। इसीलिए कहता है हमें सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सही में आज हम इस अंतिम समय में वास कर रहे हैं, और अंतिम समय में इस प्रकार हम देखते हैं, जैसे हम मत्ती के किताब 24 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि संकट हमारे जीवन में क्या है? फैला हुआ है, और इस संकट से बचने के लिए हम लोग अभी रास्ता खोज रहे हैं। रास्ता खोज रहे हैं, हम किधर जाएं और कैसे हम बचें, यही खोज में है। लेकिन शैतान जो है हमें उस महामारी में, उस तकलीफ में हमें डालने के लिए क्या है? तैयार है, और इतना तैयार है कि हम जो है वो उस दौड़ में
भेड़िया दशा में बोलेंगे, उस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, उसके पास हम नहीं जा रहे, उसके पास हम प्रार्थना नहीं करते। हाँ, हम इधर उधर हम ताक रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के पास अगर हम आते हैं तो हम सही रास्ता को हम अपनाते हैं, और जब हम सही रास्ता अपनाते हैं तो हमारे मन में जो परमेश्वर क्या है, भला भंडार, भला चीज हमारे जीवन में परमेश्वर होता है, और उस भले भंडार से हम अच्छे अच्छे बातों को हम बोल सकते हैं, जिससे किसी को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। अगर हम ठेस पहुंचाते हैं तो हम शैतान की ओर अधिक शैतान के प्रति हम अधिक वफादारी है, और परमेश्वर के प्रति हम कम वफादारी है। इसलिए चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति हम वफादारी बने और परमेश्वर के हुक्म को माने, और ताकि जब हम परमेश्वर के हुक्म को मानते हैं, परमेश्वर हमें अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे विवेक देते हैं। और इसी तरह से हम लोग बाइबल में भी पाते हैं कि जिस तरह से यीशु मसीह जो है एक पापी स्त्री, जब उनको पथरवा करने के लिए लोगों ने सोचा, उस समय यीशु मसीह ने उन्हें पथरवा करने से रोका। इससे पूर्व कि उन्होंने यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, अगर इन्हें गलत सजेशन देंगे तो हम इनको पकड़ेंगे, अगर गलत चीज बोलेंगे तो हम उनको पकड़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने गलत शब्द भी नहीं बोला और गलत विचार भी नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह ने झुका और झुक करके क्या कहा, लिखने लगा, लिख के कहा कि अगर जो कोई भी पाप, किसी पे पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं किए हैं, अगर वही आदमी, वही व्यक्ति जो है इन पर पथरवा करेगा। तो सब ने देखा और सब ने अपना अपना कदम पीछे हटा लिए। इसी तरह से परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। अब परमेश्वर हमें हर समय क्षमा करने के लिए रहता है, लेकिन हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और दूर होने के कारण से हम शैतान के बहकाव में आकर के हम गलत काम, गलत सोच, गलत विचार हम कर बैठते हैं। आइए कि हम जाने कि हमारा परमेश्वर क्षमाशील परमेश्वर है, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। अगर हम परमेश्वर के साथ हम चलेंगे और परमेश्वर के साथ हम रहेंगे, परमेश्वर हमें हर समय अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे विवेक हमें देंगे, ताकि हम अच्छे सोच, अच्छे विवेक के साथ हम परमेश्वर की हम उपासना हम कर सकें। और इसी तरह से मैं सबके लिए कहना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम सच्चा परमेश्वर का हम उपासक हैं, और सच्चे परमेश्वर के उपासक हम अपने मन से, अपने हम दिल से हम करें, ताकि हमें जब इस महामारी, जब इस तकलीफ आई है, इस तकलीफ से भी हमें बचाएगा। जिस तरह से हमने पाते हैं कि यशायाह की किताब उसका 41:10 में कहता है कि हमें डरने की कोई बात नहीं, हमें नहीं डरने के लिए कहता है। यशायाह 41:10 में यहाँ कहता है कि मत डर, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें क्या करूंगा, संभाले रखूंगा। मैं पढ़ना चाहूंगा उसको 41:10 को। इसके बाद मैं हमारे जो छोटा सा वचन है इसको मैं अंत करना चाहूंगा। यहाँ 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरे सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे क्या करूंगा, संभालूंगा। कहता है क्या ही भला परमेश्वर है, क्या ही महान परमेश्वर है, हमें डरने के लिए नहीं करता है। हाँ, परमेश्वर हमें संभालता है, संभालेगा। और जब संभालेगा परमेश्वर, जब हम उन पर निर्भर होंगे, उन पर हम विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ चलेंगे, परमेश्वर निश्चय हमें, जो हम अभी तक सुरक्षित हैं, हम सबको परमेश्वर संभाले और हमें सुरक्षित। परमेश्वर हम सबको आज की इस छोटी सी वचन में हम सबको आशीष दे और होए। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आज की साबत
इस शुरुआत के लिए कि हम साबत की शुरुआत में हम सब हो सकते हैं। इसमें प्रार्थना करते हैं जब हम वचनों में से पढ़ें पिता कि हमेशा हम एक दूसरे को दोष लगाने, एक दूसरे को दोषी ठहराने में लगे रहते हैं, लेकिन तू वचन में हमें यह आगाह करता है कि हमें सावधान करना चाहता है पिता कि हम सावधान रहे, कि हम किसी पर हम दोष ना लगाएं। पिता तू हम सबको तू मदद कर, सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि हम तुझ पर बने रह सके और हम अच्छे फल जो हमारे जीवन में होना चाहिए पिता, उन अच्छे फल का हम अच्छा निर्माण हम कर सके। तो हम सबको तो अगुवाई करना। इसी तरह से प्रार्थना करते पिता, बहुत से लोग इस तकलीफ में है, इस महामारी के चपेट में है, तो उनके साथ हो कि सुधि ले। और प्रार्थना करते पिता उन परिवारों के लिए जो शोकित परिवार है पिता के साथ हो, विशेषकर याद करते समय सरदा भाभी के साथ हो, दादा के साथ हो, और उनके बेटों के साथ है पिता, जिस समय वह शोकित में है पिता, उन्हें तो शांति दे। और इसी तरह से प्रार्थना में याद करते हैं पास्टर एंड मिसेस किस्कू, दोनों के साथ भी हो, उन्हें भी तो संभाल पिता, क्योंकि ये समय इस तरह का समय है पिता जो हमारे लिए कठिन समय है पिता, और इन कठिन समय में तो संभाले। प्रार्थना करते हैं मोनादी के साथ हो, उनकी भी देखभाल कर, उनकी सुधि ले। प्रार्थना करते हैं हम जितने भी इस महामारी से चपेट में हैं, जिस तरह से याद करते हैं मिस्टर एंड मिसेस सोरेन के लिए पिता, उनके साथ भी हो, उनकी भी तो देखभाल कर और उनकी भी तो सुधि ले। और इसी तरह से वचन के तहत उन्हें तो संभाले रख। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं जीपीडी हेम्ब्रोम जितने परिवार है पिता, उन सबों के साथ हो, उनकी भी तो सुधि ले। और इसी तरह से हम सब आपके हाथ में समर्पित होते हैं, तुम सबों के साथ हमारे पापों को तो क्षमा कर। इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन। आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सर विक्टर लकड़ा को इस सुंदर सी वचन को हम लोगों के बीच में पेश करने के लिए, और बहुत ही अच्छा मैसेज था, और हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ को अपने जीवन में लागू करने के लिए। जैसे हम लोग सीखे एक दूसरे का गलती को ना देखना, और बहुत होता है हम लोग बड़े लोग छोटों के गलतियाँ ढूंढते हैं और कभी कभी अपने गलतियों को छुपा लेते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ जो मुझे सीखने को मिली और सभी को, वो है अपने भंडार को, अपने जीवन को अच्छी तरह सजाए रखना और अच्छी चीज़ों से पूर्ति करना। लेकिन बहुत समय हम लोग फेल हो जाते हैं और ईश्वर हम लोगों को बोलता है कि सारे भार मुझ पर दो, और इसके लिए मैंने एक हिब्रू 13:5 जहाँ ईश्वर बोलते हैं कि नेवर विल आई लीव यू, नेवर विल आई forsake यू। तो जब हम लोग अपने पूरे भार ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो हम लोगों के लिए सारी चीज़ आसान हो जाता है। तो हम लोग सभी कोई अपने आप को ईश्वर के हाथ में सौंपेंगे और कोशिश में लगे रहेंगे। हम लोगों से गलती तो होती है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे और हमेशा अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंपेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम लोग अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। इस समय हम लोगों के बीच एक स्पेशल सॉन्ग है जो कि घाटशिला के बच्चों के द्वारा लिया जाएगा, और मैं घाटशिला के बच्चों को सामने बुलाना चाहती हूँ ताकि वे हम लोगों को स्पेशल गाना सुना सकें। धन्यवाद। मैंने पूछा प्रभु से कि क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से कि क्यों करता मुझसे इतना
धन्यवाद देना चाहती हूँ घाटशिला के बच्चों को इस सुंदर सी गाना पेश करने के लिए हम लोगों के बीच। और इस गाना से हम लोग ये जान सकते हैं कि ईश्वर ने हम लोगों को हमेशा प्यार ही दिया है, क्योंकि हम लोग उनके रचना हैं। जैसे हमारे माता पिता हमको प्यार करते हैं, वैसे ही उनसे भी बड़े हमारे ईश्वर है, जिन्होंने हम लोगों को उनकी रूप में हम लोगों को बनाया है, और उनका प्यार बहुत ही महान है। वो हमेशा से प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। मैंने आप लोगों के सामने में एक छोटी सी मैसेज रखना चाहती हूँ। जैसे कि इस कोविड सिचुएशन में बहुत हमारे परिवार के सदस्य लोग बहुत कोई अफेक्टेड हो जा रहे हैं, बहुत कोई अपने परिवार के लोगों को खो दे रहे हैं, और बहुत कोई शोक मना रहे हैं। तो मैं ये छोटी सी मैसेज उन लोगों को, इनफैक्ट सभी के लिए ये मैसेज मैं रखना चाहती हूँ, और मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी। God never sends you into a situation alone. God goes before you. He stands beside you. He walks behind you, whatever situation you have right now. Be confident. God is with you. मैं और एक बार इस चीज़ को दोहराना चाहती हूँ। God never sends you into a situation alone. God goes before you. He stands beside you. He walks behind you, whatever situation you have right now. Be confident because God is with you. यही बताने चाह रहे थे कि लिस्ट में हमको बहुत से नाम मिला है, और बहुत से नाम और प्रार्थना 3 बार हो चुका है। शारदा की माँ का दुखद खबर है, उसको हम लोग याद करेंगे। आईवी के घर में भी बहुत प्रॉब्लम है। आईवी और क्लाउडियस और नॉमी, ये लोग बीमार हैं और बीमार ठीक भी हो जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट चला जा रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये सारे नाम हैं। आईवी क्लाउडियस के घर में उनके समधिन आए हुए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, और उनको वो लोग रखे हैं। उनका आईवी का दामाद सेवा कर रहा है, उनके साथ साथ आईवी भी बीमार हो रही थी, क्लाउडियस बीमार, नॉमी बीमार, और इस प्रकार से पूरे घर में उनको तकलीफ है। डेविड के बारे में बताया जा रहा था कि उसको बुखार हो रहा है। फिर खूंटी में रानी, रश्मि और नथान लोग बीमार थे, और मिस्टर अगस्टिन भी बीमार थे। ग्लैडविन टूडू के घर में भी कोविड का केस था। और हम लोग, हमारे इस इलाके में हमारे जो बिजली डिपार्टमेंट के एसडीओ साहब हैं, वो रात को हमको फ़ोन करके कहे कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है, हम क्या करेंगे। और वो चाह रहे थे कि उनके बीवी और उनका एकदम नन्हा बच्चा 2-3 महीना का है और एक बेटी है, उसके लिए लेकर के हमारे पास आएंगे कह रहे थे। लेकिन फिर उसकी मिसेस बोली नहीं, हम यहीं मैनेज कर लेंगे, और वो लोग अपने घर में ही हैं। फिर हमारा जो सप्लायर है मिस्टर कैलाश जी, वो कोविड से नहीं, लेकिन उनका हालत बहुत बुरा है, और बार बार हमको यही कहते रहते हैं कि वेलोर से हमको मैसेज दो, वेलोर से हमारा कुछ उपाय कर दो। और हम वेलोर से डॉक्टर जॉर्ज के साथ उसके बारे में बात कर चुके हैं। वो चलना फिरना है, लेकिन बहुत कमज़ोर है, और इतना उसका प्रॉब्लम है। तो हम लोग उसको प्रार्थना में ही रख करके हम उनसे विनती कहे हैं कि हम प्रार्थना करते रहेंगे आपके लिए, और ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि वो भी जानता है कि उनका समय थोड़ा ही है, और लीवर प्रॉब्लम है, लीवर कैंसर है, और फिर कान के नीचे भी कैंसर है, और इस प्रकार से बहुत परेशान में है। तो बहुत से लोग अभी बीमार से ग्रसित हैं, बीमार हो रहा है। और ये कोविड जो हमारे चर्च में हमारे लोगों को सेक्शन ऑफिस में पूरा है, कर्मटार कैंपस में पूरा है, और भी हमारे मिशन स्टेशन सारी जगहों में इस प्रकार का शिकायत आ रहा है। और जब ऐसा सुनते हैं तो हमको बहुत दुख लगता है। और फिर हमारे यहाँ प्रदीप और सुषमा के घर में भी, सुषमा
भी रांची गई थी, रांची से लौटी है और उन लोग को बुखार और तकलीफ चल रहा था। प्रदीप अभी ठीक हो गए सुनते हैं। तो जरा सा भी बुखार बीमारी आता है हम लोग सब परेशान हो जाते हैं कि क्या है, और सावधानी से, तो ईश्वर हम लोग को सावधान से रहने कहता है। और हम लोग जितने को बीमार हैं हम लोग को ईश्वर के पास समर्पित होना है, और समर्पित हो करके हमको ईश्वर से विनती करना है, क्योंकि ईश्वर हमारा हमको तकलीफ में नहीं देता है, ये शैतान हम लोग को तकलीफ में डालता है। और चूंकि हम शैतान के द्वारा तकलीफ में डाले जाते हैं तो हमको शैतान से बचना है। यहाँ पर उस दिन हम लोग का 24/7 का मीटिंग था, और उस 24/7 के मीटिंग में सैमी और पामी भजन संहिता 91 को कंठस्थ हम लोग को बोल करके सुनाए, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। पामी सामी भजन संहिता 91 को इंग्लिश में बहुत सुंदर से रिपीट करके बताए थे और बहुत अच्छा लगा था। और उसी भजन संहिता के 91 अध्याय में अच्छे अच्छे वचन हमको कहता है। मैं 4 पद से पढ़ रहा हूँ। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उनके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। तू ना तो रात के भय से डरेगा और न उस वीर के जो दिन, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महा रोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मैं तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000, मैं तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और वह दुष्टों का अंत को देखेगा। ए यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। ये वचन हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, और विक्टर भी हम लोग को पढ़ने के लिए कहा था। यशायाह 41 उसका 10, उसको मैं फिर से पढ़ दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हम लोगों को ईश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वो हमें संभाले रखेगा। हमसे वो कहता है दाऊद की पुस्तक में, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को दिखेगा। हे वह, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। ईश्वर हमारा शरण स्थान है, और हम जितने कोई दुख में है, ऐसा ना समझें कि हम बहुत बड़ा पाप किए हैं और हम बहुत बड़ी गलती किए हैं, लेकिन हम दूसरों की सेवा करने में भी हमारे ऊपर बीमारी आ जाती है। फोर फ्रंट में जितने कोई लड़ रहे हैं वो लोग बहुत परेशान और चिंता में रहते हैं, लेकिन ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं। और अगर हम लोग कोरोना से ग्रसित हैं, कोरोना पॉजिटिव है, तो हमको डरना नहीं है। बहुत सा हेल्थ का रूल, बहुत सा नियम कानून हम लोग डॉक्टर जॉर्ज और बहुत लोगों के द्वारा दे दिया गया है, जिसको हम लोग प्रैक्टिस करें और जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसा हालत में गर्म पानी और जो भी प्रिकॉशन का चीज़ है उसको लेंगे, तो ईश्वर हमको उन सारे महामारी और बीमारियों से हमको बचाएगा। इस वक्त प्रार्थना करेंगे, और इन सारे लोगों का जिसका नाम हमने पढ़ा, और इसका अलावा भी जो हमारे बीच में हैं और आसपास हैं, हमारे इस इलाके में भी 2-3 घर कोरोना पॉजिटिव हो गया है और उनकी हालत बहुत बुरी है। एक घर में जो हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों बूढ़े बूढ़ी हैं, और उनके यहाँ बाहर से काम करने आती थी। मालूम नहीं वो लोग कैसा चल रहे हैं, कैसा कर पा रहे हैं, खबर नहीं है। लेकिन उनको भी
वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऐसा ऐसा घर ऐसे ऐसे लोगों को सोचते हैं, तो उनके पास जा तो नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम लोग इतने सारे नाम, इतने सारे लोग जिनका हमने लिस्ट पाया, और लिस्ट के अनुसार इनको हम परमेश्वर के हाथ में रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्ग पिता, धन्यवाद देते हैं, सारी सप्ताह तूने हमारी रक्षा रखवाली किया, भला चंगा रखा, और सबत दिन के शुरू में हम सबको तेरे सामने, तेरे पास आने का मौका दिया। और इतने जन जब हम तेरे पास आते हैं और तेरे सामने अपने सरों को झुकाते हैं, विनती करते हैं, तू हमारे विनती को सुनता है, हमारी रक्षा करता है, हमको बचाता है। और इस कारण इस वक्त जो हम अपनी कमजोरी, अपने तकलीफ, अपने बीमारी और परेशानी को तेरे सामने लाया और नामों को पढ़ा, इन सारे नाम को जो कोरोना ग्रसित हैं, और अगर वो कोरोना ग्रसित नहीं भी हैं, बीमार हैं और बुरे हालत और तकलीफ में हैं, इन सब लोगों को हम तेरे पास लाते हैं। इन पर तू अपना हाथ रख और इनको तू अपनी शांति दे और उनको उनके बीमारी और तकलीफ से रक्षा कर। तू चंगा करने वाला ईश्वर है, और तू कहा है कि तू जब इस दुनिया में था, तू कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम भी अगर इस प्रकार लोगों के साथ प्रार्थना करोगे और उस पर हाथ रखोगे, विनती करोगे, तो वो चंगे होंगे। इस कारण इस वक्त बहुत सारे लोग जो पीड़ित हैं, तकलीफ में, प्रभु इन सबको तेरे पास लाते हैं। और चूंकि हम तेरे चेले हैं, तेरे दास हैं, और तू हमको कहा है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे और इन सारे लोगों के लिए जो तकलीफ में है वो चंगे किए जाएंगे। याकूब के पुस्तक में भी तू कहता है, धर्मी जनों की प्रार्थना, हम धर्मी नहीं हैं प्रभु, फिर भी हम तेरे पास आते हैं और विनती करते हैं कि इन सारे लोगों को तू जो तकलीफ में है उनकी भी तू सुधि ले, उनको तू चंगाई बख्श दे। मिस्टर कैलाश जो हमारे घाटशिला के हैं, हमारे सप्लायर हैं, और उनसे हम बातें करते हैं और उनसे उनके लिए प्रार्थना करते हैं और विनती करते प्रभु कि उनको तो चंगाई बख्श दे। कठिन अवस्था है, लेकिन तेरे पास कुछ कठिन नहीं है, और तू चाहेगा, तेरी इच्छा के अनुसार सब चंगे किए जाएंगे। और जितना भी नाम हमने पढ़ा, सब नाम के अनुसार तू सबों को चंगाई बख्श दे। मोना का सिलाइन चढ़ रहा था, मोना के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उसको तू भला चंगा और स्वस्थ निरोग स्वस्थ लाभ दे। और शारदा के परिवार के लिए भी, जब वो प्रियजन को परिवार में खो दिए हैं, उस परिवार में शांति हो सके और सब कुछ ठीक हो सके, ऐसा तो अपनी अगुवाई और दया सब परिवार सबों को बनाए रहे। हम तेरे वचन को पढ़ते हैं और वचन को जैसा हमने पढ़ा, तेरे सामने 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन हमारा कुछ ना होगा। प्रभु तू हमारा यह आश्वासन देता है, मरी और महामारी में भी हम इस वचन को याद करते हुए तेरे पास आते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि हमें तो अच्छा भला चंगा रखा है, लेकिन साथ में जितने लोग तकलीफ में हैं वो लोग भी चंगे किए जाएं। रात का समय हो गया है और रात को जब अपने अपने घरों में हम आराम करेंगे, सुनिंद्रा दे और चिंता फिक्र दूर कर, और सुबह जाग उठ करके नया दिन सबत दिन देखते हुए सबत दिन के प्रोग्राम में हम शामिल हो सके, ऐसा तो मदद कर। अपने आप को और सब बीमार से पड़े लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दया कर, सुन और ग्रहण कर, आमीन। Victorious, my chains are gone, my debt is paid.